For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Juggi Bhasin sir with us, and he is the author of Lies, Spice and the Nuclear Rise. Thank you so much sir for coming on our show. I am truly grateful कि आपने हमारे शो को चुना. अरे थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच. और आपके जितने भी आपके सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से एक सादर प्रणाम. एंड it's wonderful to be on your show. Thank you so much. Pleasure, sir. So, sir, before we get into the podcast and know much more about your book, about your upcoming projects and other things, I would request you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपको और बेहतरीन तरीके से जान सकें. And do share how you started this writing journey. Okay. Thank you so much, Gaurav. See, Gaurav, I was a television reporter, correspondent, and a television anchor way back. I'm talking of the late 80s and 90s. उस टाइम जैसे आप जानते होंगे सिर्फ दूरदर्शन न्यूज होता था. So I used to be in that. जितनी कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग होती है मैं काफी करता था. That is going to Kashmir very frequently. Insurgency was at its height during that time in the late 80s. A lot of important trips, a lot of important coverages I have done during that stint, including when the Babri Masjid was broken. So I was there with my camera team. I was the first Indian journalist to go to North Korea and interview the great leader. I have interviewed बहुत पहले होते थे प्रेसिडेंट गोर्बाचोव, सोवियत यूनियन के क्रेमलिन के अंदर, वहां भी इंटरव्यू करा. दीज आर लैंडमार्क कवरेजेस व्हिच आई हैव डन. देन आई लेफ्ट DD News and I became an entrepreneur. I had my own business, and then later Mr. Bhaskar Ghosh, who was the the main person who was driving media at that time, he called me and he said, Jaggi, I want you in Lok Sabha television. So I went back as the lead anchor for Lok Sabha television. Okay. So that is my television journey. Then I'm a Delhi person. I moved to Bombay, Mumbai. And there I gave up my Lok Sabha television stint also because I wanted to write, to be honest with you. Experiences बहुत थे कश्मीर के, insurgency के, and I wanted to write about geostrategic issues, the spy universe as it is called. तो मैंने अपनी पहली किताब लिखी और वो 2012 में आई थी. It was called The Terrorist, which is a national bestseller. Wow. And I got a contract at that time from Penguin, 3-book contract straight away. तो वो 3 किताबें आई एक के बाद एक. Okay. The journey continues. और ये जो मेरी नई किताब आई है, this is my 7th book, Lies, Spies and Nuclear Rise. Okay. And one more additional thing I'd like to say about myself. I'm also a stage actor. I do theatre. थिएटर डायरेक्टर, कई लोगों ने नाम सुना होगा फैजल अलकाजी साहब, तो मैं उनके साथ काम करता हूँ. कई शोज कर चुका हूँ और अभी भी मेरे शोज चल रहे हैं. तो दिस इज माय जर्नी इन शॉर्ट, एज यू कैन से. Okay. Definitely a versatile journey, sir, because starting from the journalism and then as of now in the theaters and this writing the books and all, it's definitely an inspiring one, I must say that. Thank you. So, sir, after listening to this podcast, many people will just love to explore your book. I'm talking about the latest one. They might be interested in buying and reading it too. So, if we talk about the perspective of a new reader, who is just listening to this podcast, what they can expect from your book? Can you share some insights with us? Of course. I would love to do that. Gaurav, the book actually is set in the 70s, but it is also a very contemporary story. मतलब आज के जो हालात है, in a very strange way, जो आज सब कुछ चल रहा है, वो in a way आप समझ लीजिए कि 70 के दशक में भी वो सब चल रहा था. अब the book is set in the 70s. This is based on real characters, though my plotting, my characters and my narrative, उसमें काफी fictional element भी है, because आजकल एक genre चल रहा है राइटिंग के अंदर, इट्स कॉल्ड द रियलिटी फिक्शन जॉनर. वो भी मैंने उसको एम्प्लॉय करा है यहाँ पर इस बुक में.
This book is based on the 1974 nuclear test which was conducted. Indira Gandhi authorized that. तो ये तो historical fact है. मगर what were the reasons she did it? उनकी सोच क्या थी, वो क्या करना चाहती थी, क्यों, क्या कोई मजबूरी थी, were there some certain compulsions? So I have tried to explore all that in this book. और उस टाइम क्या हो रहा था कि 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जिसमें काफी कश्मकश चल रही थी. एक तो हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और CIA ऑफ द अमेरिकन्स एंड देन द ISI ऑफ पाकिस्तान. तो वो सब कुछ, वो ड्रामा जो सब बिहाइंड द सीन चल रहा था, वो भी इस किताब के अंदर है. जो फैमिली डायनामिक्स थी प्राइम मिनिस्टर की, वो भी इस किताब के अंदर है. और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो एक बड़ा इम्पॉसिबल टाइम फ्रेम दिया गया था कि आप ये बनाइए इसको, बिकॉज तो वो सब कुछ है. एंड द कंपल्शंस व्हाई शी वांटेड द न्यूक्लियर टेस्ट टू बी कंडक्टेड. Why am I saying that it is also linked with the present is because आजकल भी आप देखें, India supposes a very strong economy now, much better economy, but there's a lot of interference from foreign powers even today, intelligence agencies. तो वो हालात जो उस टाइम थे कुछ आज भी वैसे ही हैं. So that's why it will be very relevant to your young readers, contemporary readers. It's a very exciting book. पेज टर्नर जिसे कहते हैं. इसको एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आप रुकेंगे नहीं. आई प्रॉमिस यू दैट. तो आई वुड अर्ज ऑल योर रीडर्स टू गो फॉर इट. Definitely. So, sir, as you shared that your first book was released in 2017, it's almost 2012. 2012. I'm so sorry, 2012. Yeah. And this is the 7th book. So. Yeah. You are not someone who's gonna stop, what I personally think. And as we will be sharing this podcast on social media as well, so definitely your audience, your reader base will also be listening to this podcast. So when it comes to talking from the perspective of a person who have already read your book, already know you, so what they can expect from you as of now? Like, are you writing something, you want to experiment a bit on some, other fresh genres you haven't seen till now, or you want to stick to these only? Is there anything in the pipeline? And if yes, then please share with us. Sure. Okay, let me start by first quoting somebody who I rate as a very, very intense and he's a very world famous novelist. He used to write on spy dramas, John Le Carre. तो जॉन ली कार ने एक बार उनसे पूछा गया था कि आप उन्होंने काफी किताबें लिखी थी, तो उनसे पूछा गया कि आप इतनी किताबें लिखते हैं. तो उन्होंने कहा, भाई देखो, मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं चाहता हूं कि मेरी हर एक किताब, हर साल में एक किताब आती रहे. सो आई फॉलो द सेम प्रिंसिपल. एज लॉन्ग एज आई कैन हैंग माय बूट्स अप और आई कांट राइट, बट आई वांट टू राइट प्रैक्टिकली 1 book a year, लिटरली. एक तो ये मेरा गोल है. बाकी जो आपका जो दूसरा प्रश्न है, आई एम ऑल्सो experimenting with the idea in the future to write non-fiction also on geostrategic matters, क्योंकि वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. India's positioning vis-a-vis the world और great power rivalry, सब कॉन्टिनेंट में हमारा क्या चल रहा है, हमारा पावर इक्वेशन क्या है, इन सब के बारे में ये जो विषय हैं सारे, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं. और मैं हो सकता है कि नेक्स्ट किताब उस पे लिखूं, तो द आइडिया ऑफ अनदर बुक ऑफ द सेम काइंड इज आल्सो देयर. बट जो मेरे रीडर्स हैं उनको एक चीज तो डेफिनेटली आई वांट टू अश्योर देम कि मेरे जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज एजी कैरेक्टर्स जिसे कहते हैं. वो दे आर इनहैबिट द ग्रे जोन, वो ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स नहीं होते, बिकॉज दैट मेक्स फॉर वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. तो वो सब रहेगा. मगर हो सकता है कि अगली किताब जो हो वो नॉन फिक्शन पे हो. Noted, sir. So definitely there's a lot, and almost हर साल आने वाली किताबें, तो people who have already read the book and know, sir, so definitely there's a sense of happiness in their mind after listening to this answer, what I can feel. So I would like to acknowledge you, sir, that I am in this industry, like in this book industry, from last 10 years. Like today we have completed our 10th anniversary, and I am doing this podcast from last 4 years. Like in Feb we will complete 5th year. So I was fortunate enough to be in touch with more than 500 to 600 authors in this 10 years of journey. And what I have seen, that
many authors na, they are trying to be known or remembered as a certain genre or certain type of author. They want to fit themselves in a kind of template कि okay, if this is my name, my book has to be in this category, or people should think कि मैं इस तरीके से इस बारे में लिखता हूँ. So when it comes to this, like many people say कि it also helps in personal branding according to them. But when it comes to you, आज से let's say अगर 1-2 साल बाद कोई आपकी कोई किताब देखता है कि अरे जुग्गी सर की नई किताब आई है, so what sudden impact do you want to create on that reader's mind कि अच्छा सर की किताबें इस टाइप की होगी, इस बारे में होगी, मुझे ये पढ़ने को मिलेगा, या इस तरीके से लिखी होगी. कभी सोचा है इस बारे में? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका गौरव. देखो, मैं एक चीज समझता हूं कि अपने दिमाग में और अपने रीडर्स के दिमाग में आपको स्लॉटिंग नहीं करनी चाहिए. डेलिबरेट स्लॉटिंग का मतलब होता है कि देखो मैं तो इसी तरह की चीजें क्रिएटिवली बनाऊंगा, मैं उनको पब्लिश करूंगा. बिकॉज स्लॉटिंग में क्या होता है, फिर आप बड़े कन्फाइंड रह जाते हो, लिमिटेशंस हो जाती हैं. तो यू शुड बी ओपन टू, जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. हैविंग सेड दैट, ये भी बात सच है कि आपको उसी चीज के बारे में लिखना चाहिए जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका पैशन है. अगर आप सपोजिंग मैं अगर जागी बसीन स्टार्ट्स राइटिंग अबाउट माइथोलॉजी फॉर इंस्टेंस, तो कोई वो फजूल का होगा, क्योंकि उसमें कोई सेंस नहीं है. क्योंकि मेरे को ठीक है, थोड़ी बहुत माइथोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है, मगर अगर मैं कहूं कि मैं उस पर किताब लिखना चाहूंगा तो मैं नहीं लिखना चाहूंगा. आई डोंट वांट टू फोर्स माई सेल्फ ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, और फॉर इंस्टेंस ऑन रोमांटिक फिक्शन, और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिक्शन. तो आप लिखे वही जिसमें आपकी रुचि है और जिसमें आपकी थोड़ी माहिरता है, कि यानी कि आपका उसमें थोड़ा टैलेंट है, आपका एक स्किल सेट है जिसे कहते हैं. इन दैट सेंस, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज, स्पाई ड्रामास, इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल प्ले, अब जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल गौरव, ये जो मूवी आजकल जो जिसने इतना तहलका मचाया हुआ है, धुरंधर, दिस इज आल्सो अ रियलिटी फिक्शन काइंड ऑफ, यू नो, इट इज बेस्ड ऑन रियल कैरेक्टर्स. तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी इमेजिनेशन लेके उसको काफी चेंज करा है. तो I would still continue to write in that way. I don't want to be particularly known or maybe remembered only for that. I would say that I want to write about what I'm convinced about. I think that is the correct answer. जो चीज आपके अंदर से आवाज आती है ना, उसके बारे में आप लिखें जिसमें आपका पूरा बिलीफ है. एक कोई ऐसा इशू पकड़ के बैठ जाए क्योंकि हो सकता है मेरी किताबें और बिक जाएं अगर माइथोलॉजी के बारे में, कई लोग करते हैं, राइटर्स करते हैं, आप जानते हैं. बिल्कुल. रोमांटिक में कई लोग घुस जाते हैं कि उसमें हो सकता है किताबें हमारी ज्यादा बिक जाएं. आई वुड रादर ऑनेस्टली गौरव की कम किताबें बिके, मगर ढंग के लोग पढ़ें और वो कहें कि हाँ भाई, इस इंसान को अपने सब्जेक्ट के बारे नॉलेज है, he writes well. I would rather take that compliment instead of hundreds and thousands of books which are sold in a subject I frankly know nothing much about. बिल्कुल. I also agree on that, sir. In fact, I would like to add a couple of things in that कि कई बार ऐसा होता है ना कि let's say if we are writing something जो अभी हमारा मन कर रहा है and we are confined कि नहीं हमें बस इसी टॉपिक पे लिखना है, हो सकता है आज से 2-3 साल बाद आपका मन ना करे उस टॉपिक पे लिखने का, बट द ऑडियंस उसको वही आपसे एक्सपेक्टेशन है, तो यू विल एंड अप राइटिंग समथिंग जो कि ना कनेक्ट कर पाए लोग, जिसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, एंड दैट विल इवेंचुअली आपका जो इंटरेस्ट है ना उस चीज से वो हटा देगा. दैट्स व्हाट आई फील. सो रादर द राइटिंग कि मैं इसी लाइन में इसी स्ट्रीम में लिखूंगा, रादर देन यू कैन जस्ट गो विद द ऑथेंटिसिटी कि व्हाटएवर आई विल राइट, जैसा आपने बताया कि जब तक मेरी उसमें रुचि नहीं है या फिर जब तक मेरा उसमें पूरी पकड़ नहीं है उस पर्टिकुलर चीज पे, तब तक मैं नहीं लिखूंगा. एंड जैसे जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट रहेगा मैं उसमें लिखूंगा, तो पीपल कैन एक्सपेक्ट वर्सेटैलिटी, मोर ओवर ऑथेंटिसिटी विद मी. हाँ, बिल्कुल. आई कंप्लीटली एग्री विद यू गौरव, बिकॉज ये इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज राइटर्स शुड नॉट फॉल इनटू अ ट्रैप. और वो ट्रैप होता है कि अरे भाई किताबें नहीं बिक रही, तो लेट्स ट्राई एंड डू सम न्यू जॉनरा. आजकल ये जॉनरा बहुत चल रहा है, तो लेट मी स्टार्ट डूइंग दैट. और आप तो बिकॉज देखो, तुमने तो 500 से ज्यादा ऑथर्स को इंटरव्यू करा है, सो यू नो एग्जैक्टली व्हिच ऑथर इज हु इज व्हिच ऑथर. अब ये जो ट्रेंड जो पहले चल पड़ा था, माइथोलॉजी, एवरीबॉडी वांट्स टू राइट ऑन माइथोलॉजी. अरे भाई,
कोई सेंस भी तो होना, मतलब बिल्कुल। और अब पॉइंट यह हो गया, इतनी सैचुरेशन हो गई है उस पर्टिकुलर जॉनरा के अंदर कि मुझे लगता नहीं कि कोई वो ऐसी किताबें भी उठाना चाहेगा कि वही चीज बार बार लोग Exactly. इधर उधर से लिखी जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल। so, yeah, वो चीज लिखो जिसमें एक्चुअली यू कैन से समथिंग न्यू, यू कैन से व्हिच माइट बी द सेम जॉनरा, बट अगेन आपकी जो इंटेंसिटी है, आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसमें एक नयापन है. आई थिंक दैट इज द मार्क ऑफ अ सक्सेसफुल राइटर. Agree on that, sir. Definitely. So, sir, my next question to of this podcast will be कि after the first lockdown was over, the numbers of author got increased very rapidly. Like there was a boom in this industry, and the publishing has become much more easier. Like आपने ऑलमोस्ट 13 साल पहले स्टार्ट किया था, एंड तब से अब में बहुत चेंजेस आए. लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ लिटरेरी एजेंट्स, KDP इज देयर, वी हैव सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस, ट्रेडिशनल इज ऑलरेडी देयर, वो तो शुरू से थे. सो व्हाट आई पर्सनली फील कि लिखने वाले ज्यादा हो गए हैं एज कम्पेयर टू पढ़ने वाले. सो व्हेन इट कम्स टू यू, लाइक यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड आपने पूरा ये 13 साल की जर्नी देखी है. So according to you, how hard it has become or it is becoming to make your book stand out in the market? Very good. It's a very interesting question, Gaurav. और उसका शॉर्ट आंसर ये है कि लॉकडाउन के अंदर ही शुरू हो गया था. ये लॉकडाउन के बाद भी नहीं है, आई वुड से, बिकॉज पीपल हैड नथिंग मच टू डू, दे वर कन्फाइंड इन देयर हाउसेस. तो उसके अंदर उन्होंने, कई लोगों ने कहा चलो किताब लिखते हैं, अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखते हैं, और व्हाटएवर इंटरेस्ट है. तो एक पर्टिकुलर ब्रांड या जॉनरा उस टाइम डेवलप होना शुरू हो गया था, जो अभी भी चल रहा है. इट इज कॉल्ड वैनिटी पब्लिशिंग. वैनिटी पब्लिशिंग का मतलब ये है कि you know people take this thing very seriously that every person has a book in him. तो हर आदमी सोचता हाँ चलो मेरे को भी किताब लिखनी है क्योंकि मेरे पास भी काफी कुछ है शेयर करने को, which is okay, which is nothing, there's nothing wrong with that. But the problem is कि वैनिटी पब्लिशिंग में क्या होता है, फिर कई पब्लिशर्स बैठे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, आप हमें पैसे दीजिए और आपकी किताब हम पब्लिश कर देंगे. So what happens is in the process there is so much of I'm sorry for using a slightly stronger word, जिसे कहते हैं कचड़ा मार्केट में आ जाता है फिर. तो it's very difficult to distinguish कि भाई अच्छी किताब कौन सी है, नहीं है, बिकॉज इतने लोगों ने वैसे वैनिटी पब्लिशिंग बिजनेस हाउसेस में भी बहुत होती रहती है. यू नो हर इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर वो चाहता है मेरे ऊपर कोई किताब लिखे, मतलब तो वो पैसे भी देते हैं. तो ये ट्रेंड है, इट्स फाइन. मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, जो भी है उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है, उसका भी एक रोल है. मगर जिसे कहती है रीडर को एक डिस्क्रेशन लगानी पड़ेगी कि भाई अच्छी किताब, पढ़ने वाली किताब कौन सी है. और ये सब जो किताबें इस तरह की बहुत सारी आती रहती हैं जिसमें हर आदमी कुछ ना कुछ पैसे दे के किताब लिख लेता है, तो उसके बीच में डिस्टिंग्विश करना, ये रीडर्स, आई थिंक the onus is actually on the reader. So yeah, I understand this trend is there, but then ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में भी ये सब ऐसा होता रहता है. तो this is fine. These are new things which keep coming and going all the time. In fact, the ghost writing is also introduced like 1-2 साल से. Oh yes. Okay. Correct. So, what's your writing schedule, sir? Like every day you devote some particular hours to your writing, or it's like random कि कभी कोई thought आया तो phone में या डायरी में लिख लिया and बाद में elaborate कर रहे हैं? How does it goes with you? Well, you know, एक बड़ी myth है writers के बारे में कि उनको एक cabin होना चाहिए, सामने लेक होना चाहिए, सनलाइट रहनी चाहिए, सनलाइट, और वो ठक 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 कर रहे हैं अपने. ओल्ड डेज में टाइपराइटर होता था, अब तो लैपटॉप पे करते हैं. सो फाइन, वो आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मगर मेरे ख्याल से आप अपने कमरे में बैठ के भी सब कुछ कर सकते हैं. तो मेरा ऑनेस्टली गौरव कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं है. सी आई एम इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ क्रिएटिव परस्यूट्स, बिकॉज सी आई कॉल माई सेल्फ नाउ एज अ सीनियर सिटीजन. तो हमारा एक ही बेटा है, ही सेटल इन द US. तो हम ट्रैवल बहुत दोनों करते हैं, दुनिया देखते हैं. तो मेरा क्रिएटिव परस्यूट्स, राइटिंग के अलावा मैं थिएटर भी एज आई टोल्ड यू, मैं अपने पॉडकास्ट भी मैं अपना करता हूँ. यू नो आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर शेड्यूल फॉर राइटिंग.
जब मन होता है मैं लिखता रहता हूँ. Sometimes what happens with me is कि late at night ideas come and I just sit down और 2-3 घंटे 2 या 3 बजे तक मैं लिख रहा होता हूँ. वो भी मैं करता हूँ कभी कभार. बट आई एम नॉट, अगर आपका एक डिसिप्लिन शेड्यूल है बहुत अच्छी बात है, बट मेरा नहीं है ऑनेस्टली. आई डोंट डू दैट. Okay. So, sir, as of now, as we talked about your book, your journey, your upcoming projects, and other thing. Now, let's get back to the time when you first time heard, like in 2012, okay, tomorrow your book will be live. Everybody will be able to buy it, read it, judge you on the basis of what you have written. And the second question is, like the first question was कि उस वक्त what was going on the mind, like on that एक दिन पहले उस शाम को, were you excited, relax, or you just marked up some milestones कि इतने लोग जानते हैं, इतनी तो बुक सेल हो जाएगी. And the second question is कि अब जब इस बार 2025 में वो बुक रिलीज हुई, तब उस एक दिन पहले शाम को what was on the mind, like what was the difference from then to now? Yeah, very interesting question. So I still remember very, very clearly when I wrote my first book. तो see गौरव, natural instinct होता है, कोई भी लिखता है, हर आदमी चाहता है कि उसकी जो किताब हो वो बेस्ट टू बेस्ट पब्लिशिंग हाउसेस पब्लिश करें. तो उस समय क्या, अभी भी टू बी ऑनेस्ट पेंगुइन इज स्टिल द नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस इन द कंट्री. तो मैंने अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट है पेंगुइन को भेजा, और मैंने कुछ जानकार लोगों से बात करी, तो मुझे सबने ये कहा है यार भूल जाओ, पेंगुइन तुम्हें क्यों बुलाएगा, वो तो वहां सालों साल लग जाते हैं, उनके तो हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े रहते हैं, कोई देखता भी नहीं वहां पर. आई डिडंट नो एनीवन इन पेंगुइन. तो मैंने कहा चलो भेजने तो दो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो भेज दिया मैंने. I still remember we were in Mumbai, my wife and I, मुंबई के अंदर एक क्लब है, इट्स कॉल्ड CCI, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया. तो हम कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे and I got this phone call and this lady, she was on the phone. So I excused myself, मैं बाहर गया, मैंने कहा yes, she says I am Vaishali Mathur, the commissioning editor of Penguin, and I've been through your manuscript and I just loved it, and I'm going to publish your book. So Gaurav, I'll be honest with you, those were the sweetest and the best words I had heard in my life till then. तो वो होता है excitement. I said thank you so much Vaishali, I can't believe my luck. She said no, it's not your luck, it's your hard work and your ideas and your writing ability, which is like I found to be absolutely brilliant. These are her words at that time. तो वो जो excitement थी 2012 की, to be honest, I'm 64 years old today, गौरव, मगर मेरे को अभी भी वही एक्साइटमेंट लगती है जब मेरी नई किताबें आती हैं. So when this new book came, I was similarly excited like a kid. और मुझे लगता है हमें रखना चाहिए. हमारे अंदर जो एक बच्चा जो होता है ना, एक चाइल्ड वाली enthusiasm, वो हमेशा रहनी चाहिए. We should never get so big and arrogant. अरे मैंने तो इतनी किताबें लिख दी, who cares, आ रही है किताब. You know, never. I जितना हो सकता है यार, मैं अपनी तरफ से I propagate my book, I talk about it, जैसे आप जैसे wonderful friends के साथ podcast में करता हूँ. ये सब चीजें I think you should retain your enthusiasm. That's what I would like to say. और वो childlike enthusiasm जो होती है ना, उसको हमेशा रखना चाहिए. बिल्कुल. I also agree on that, sir. So, as a author, as a person, what are the things which you are focusing upon in life, Abhi? See, ये जमाना जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स वी आर गोइंग थ्रू, बहुत ही पोलराइज्ड टाइम्स है गौरव. आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू. Either people are on this side or on that side, and I'm not talking of politics because वो leave it to the politicians and the news anchors. मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता. But we live in a very polarized times and polarized societies. तो हर आदमी का ओपिनियन है आजकल, मतलब. So how do you make sense of it? How do you make sense of not only in terms of your economy, in terms of your military strength, in terms of your politics, in terms of your international relations? These are interesting questions which have acquired a new urgency आजकल के दौर में. तो I'm also no different. I like to address these issues, talk about them, maybe write about them. मैं अपने पॉडकास्ट में भी थोड़ा बहुत करता हूँ ये सब, because these are very interesting times we live in. And as much as possible, my own position always is that I try and be what is I call myself a centrist.
कि बीच की एक लाइन रखो, डोंट बी ऑन दिस साइड और दैट साइड. बट देयर इज सो मच इंटरेस्टिंग स्टफ गोइंग ऑन राइट नाउ इन दीज जियोस्ट्रेटेजिक स्फीयर कि उस पे बात करने और लिखने का काफी दिल करता है. Okay. So sir, probably my last question to you of this podcast would be कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग लिखना स्टार्ट कर दें या फिर उनका पहला ड्राफ्ट उनके लैपटॉप में, उनके डायरी में कहीं ना कहीं हो. सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर दोज अपकमिंग ऑथर्स? My simple advice to the upcoming author is this: don't bother about style, don't bother about wonderfully correct English, don't, और अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं या हिंदी में या किसी भी भाषा में लिख रहे हैं आप इन सब चीजों की चिंता मत करिए. सिर्फ आप, जैसे अंग्रेजी में एक लाइन होती है, पुट पेन टू पेपर. जो आपको अंदर से आवाज आ रही है, जो आप अपने ख्यालात लिखना चाहते हैं, लिखिए. जस्ट राइट इट, यू नो, whether you write in a rush or doesn't matter. उसकी असेसमेंट, उसकी कितना अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, वो सब बाद में आता है. डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक, डोंट बिकम, जिसे कहते हैं ना, पहले अपने आप को एक, जिसे कहते हैं कि यू कंटेन योरसेल्फ. अरे नहीं, मेरे को इस तरीके से लिखना है, अच्छी इंग्लिश में लिखना है, अच्छी हिंदी में लिखना है, अच्छी बंगाली में लिखना है. डोंट गेट इनटू दैट. जस्ट राइट. एंड आफ्टर यू हैव रिटन, once that initial आपका तो enthusiasm आपने पेपर पे डाल दिया या लैपटॉप पे आपने कर दिया, उसके बाद आप उसको देखें और उसके बाद then you can edit and you can do other things. So that for me is very very important. Never curb your initial enthusiasm and passion. मैं young readers को, young writers को यही सलाह दूंगा, put pen to paper immediately. Don't wait for anything else. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring session with Jaggi sir. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप जैसे Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें जग्गी भसीन, या फिर आप बुक का नाम भी सर्च कर सकते हैं, लाइज, स्पाइस एंड न्यूक्लियर राइज. बुक आ जाएंगी, जरूर खरीदें, पढ़ें और अपने जानने वाले, चाहने वालों से जरूर शेयर करें. बाय द वे, इससे पहले आपके पास 6 और बुक्स भी हैं सर की, तो गो चेक आउट देम एज वेल. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो. इट वाज माय ऑनर टू बी एबल टू होस्ट यू टुडे. थैंक यू गौरव, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके. एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड योर शो, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड माय ग्रीटिंग्स टू ऑल योर वंडरफुल लिसनर्स. थैंक यू. थैंक यू सर.